welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, another album reaction right now. So this is Made You Proud MYP by Karma, and I told you that after King's album, this is the next one I'm going to react to, and after this I will react to Tala Anjum's mixtape Main. And after that, I don't know. I have not decided. Maybe I'll give album reactions a break and I'll go back to, reacting to individual songs. We'll see. But right now, this is going to be part 1 of Made You Proud because there are 13 tracks. So half of it I'll react to right now, and the remaining songs I will post it as part 2. So yeah, so I had actually said that after King's album I will do Made You Proud, and yeah, thank you for showering so much love on the King's album reaction. Though I feel, see, I went with the playlist, whatever it was sequence given in the playlist, and more than half of the comments are, अरे आपने तो उल्टा रिएक्ट कर दिया. अरे बाबा, 1.5 घंटे का जो एल्बम में रिएक्ट किया उस पे भी तो कमेंट करो ना. हाँ, सिर्फ गाने उल्टे रिएक्ट कर दिए तो बस सारे कमेंट्स वही. सीरियसली, हाँ. Anyway, so I've opened the track list now. I have the image of the track list so that वही वाले comments आप इस वाले पे ना करो at least. So we have ICU, which is the intro, Beat Do, Fate, Price Tag, Fearless featuring Ikka. बहुत लोगों ने मुझे इक्का के एल्बम पे भी रिएक्ट करने को बोला है. I'll probably first look into a couple of his songs and then I'll, at least ये वाला गाना मैं देख लूँगी. But individual, like his own songs, and then I'll, decide on the album reaction. No Snakes featuring Deep Kalsi. Then you have Gangster featuring King. So I'm really excited to listen to this song actually, because recently मैंने King पे react किया, that is why. फिर रुके ना वक्त, शाहरुल है इसमें, जान बोलती है, ज़रूरी नहीं with Krishna. When the song came out, I've already reacted to that song. Legacy versus Clout. This title is very interesting. Then Kala Bazaar and Believe featuring Raftaar, which is the outro. So I will react to ICU, Beat Do, Fate, Price Tag, Fearless, No Snakes, and chalo 7 track pe kar lete. I was thinking 6 tracks, but chalo, because I want to listen to the song which features King also. So till Gangster I will react to right now. So let's not delay this any further. A lot of the songs have their videos. I think इनका वीडियो नहीं है, नो स्नेक्स का नहीं है, एंड गैंगस्टर का भी है. ओके, कूल. सो आई थिंक फियरलेस का भी, सो फियरलेस एंड नो स्नेक, फियरलेस फीचरिंग इक्का एंड नो स्नेक्स, these two don't have their videos. So बाकी सबके वीडियो है. I'm really excited. Let's start with ICU intro. I know a lot of you told me please watch his documentary first, but I want to listen to the album. I will watch his documentary, but I want to first listen to the album. So yeah. Okay, MYP, here we go. Track 1, ICU. Ink क्योंकि पेंसिल इतना, that's why. Made You Proud. बचपन में भरोसा दिखाया सब पे, ऐसे काम बहुत करे. अब बड़ा हुआ सच में एक और बात नोट करें. पता था रैप करना जहर का पियाला है, पर मुक्ति चाहिए थी मुझको, नहीं करनी थी नौकरी. पूरा पियाला पिया, अब हूँ पूरा टॉक्सिक. फेस टू फेस, now you fucking talk
shit. कला की कमी किसमें कितने bars, let's see. तेरे करियर पे चल तू जैसे हो वो डेड सी. ना प्रोड्यूसर ना किसी एक्टर की पैदाइश, ना ही दुनिया से कुछ अलग करने की मेरी ख्वाहिश. ना मुझको कूल बनना, ना ही बनना ग्रेट, ना बनना मुझको Eminem, not even उसकी फोटो स्टेट, बट एक ठीक ठाक सा रैपर. That's all I really wanna be. पैसा, इज्जत, आर्ट, सपना यही छोटा सा रूम मेरा, 240 पेज की कॉपी. राइम स्कीम, रैप और थोड़ी बहुत हॉबी, कह लो फंडामेंटल राइट्स, लिखने का अधिकार और टोन में लिखने के मुझको मिले संस्कार. अब देखो देशभक्त संस्कारी दोनों ही काम मैं कर रहा, और क्या सोसाइटी सोचती है इसका फर्क नहीं पड़ रहा. कभी समाज ने बोला है अच्छाई के लिए नहीं, कुछ ढंग का उगता देख बोले कटाई के लिए ही. कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलेगा नहीं, आने वाली लाइन इक्का भाई के लिए नहीं. हरकत से लगता तू जीना नहीं चाहता, चैन से जिसे खुलने की इच्छा है, बंद पड़ी वो फाइल है, मुझे नहीं आना पड़ेगा. मेरे फॉलोवर्स 10 के काफी हैं, अगर मैं जेकोल हूँ तू मेरा मिडिल चाइल्ड बनेगा. पे ऊ की मात्रा ऊपर बिंदी डापे, आका डंडा खामा का पटाखा छेड़ा बम बन के पकाता फटना. नीची सारी सोच नीची हरकत है विशाखापट्टनम, गाने एक गले से सारे गलों में कर्मा का फंदा. Oh, this video is beautiful, huh? Check. Alabala 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 syllable आजकल लोग मारे. Alabala 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 syllable आजकल लोग. Alabala 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 syllable आजकल लोग मारे. Alabala 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 syllable आजकल लोग. वर्बली बने बलशाली लोग, पर असली में होते बड़े जाली लोग. घर असली में बना रखे काट के खुद के, और दूसरों पे पत्थर उछाले लोग. कभी डर से नहीं जिया कभी ना खौफ, पता मुझे कभी ना कभी ये आनी मौत, पर जिंदगी नहीं डर में बितानी बॉस. मेरे गाने बोलेंगे मेरी कहानी बॉस. I was a legend, I am a legend, I will be a legend, ये फैक्ट है. मेरे साथ में भिड़ने का सीधा सा मतलब that you're gonna die, it's a death match. अगर तू मर चुका पहले ये फ्लैशबैक, तू नहीं अंडरटेकर बट अ डेड मैन. ये है बैटल ग्राउंड नो टेंशन, तेरा मुंह चले बस what the pack man. और जो छोड़ यार मुंह चले बस what the Pac-Man. I challenge you. Whoa. This was such an interesting intro. This is one of the most different intro songs I've listened to in an album. इतने albums मैंने सुना नहीं है, but wow. Has he given the lyrics नीचे? No, he has not. Let me pull up the lyrics then. Let me pull up the lyrics. I see you, Karma. Lyrics. Yes. Genius lyrics. सबसे पहले वही आता है. So this is very, see, as an intro track, this is fantastic, I would say. But as an independent track also, I would say it's a very good song, because पहले तो मुझे सबसे अच्छा beat का ये लगा कि जहाँ पे beat change हुआ in the last verse, like completely the tone of the entire this thing changed, of the song, the mood and the tone of the song changed. So you see sort of different shades that we can expect to see from this album and of Karma himself. Before I just go through the lyrics, let me just look into the credits also once. So I see you, I challenge you, basically. Produced by Yunan. Oh, Yunan, the singer? That guy? Additional Vox Raftar. Mixed and mastered by Deep Kalsi. Okay. Oh, okay. All right. Cool. Okay, I didn't know Yunan was also a producer. If this is the same guy who is the singer also, huh? So great. Okay, now let me just go through like the lyrics once. Though Karma, I don't know, whenever, see, I have Karma का independent जो एक ही गाना है जो मैंने actually में, because I've seen him feature in other artist work, but here जैसे ज़रूरी नहीं is the song that I reacted to, and I think I told in that reaction also, okay, he's the kind of artist I feel is very like he looks very unproblematic to me, in the sense that he gives me this very humble vibe, you know. I don't know if it's his face or the way his body language is. It's just that I look at him and I feel that he's a very, very, very humble, down to earth person. मतलब जबरदस्ती का उसमें शोशा बिल्कुल भी नहीं है. He's like really एक सुलझा हुआ इंसान जिसको बोलते हैं ना, मुझे वो वैसा लगता है. Just एक वो vibe आता है ना एक बंदे से जब आप उसको देखते हो ना, that I get that vibe. I get that vibe. So yeah, let's just go through the lyrics one.
ओके लेट्स स्टार्ट विद द वर्स। बचपन में भरोसा दिखाया सब पे, ऐसा काम बहुत करे, अब बड़े हुए सच में। हाँ, अब बड़ा हुआ सच में। और एक और बात नोट करे, पता था रैप करना जहर का प्याला है। सो लाइक ही कीप सेइंग ना कि मुझे, मेरे को मतलब ही हैड दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट कि मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है, एंड ही ऑलवेज हैड दिस पैशन फॉर रैपिंग। बट वो बोल रहा था पता था रैप करना जहर का प्याला है, पर मुक्ति चाहिए थी। हाँ, नहीं करनी थी मुझे नौकरी। हाँ, सो यू सी व्हेन ही सेड, ऑफ कोर्स बिकॉज वो लिरिक दिया नहीं था ना, बिकॉज व्हेन ही सेड पूरा प्याला पिया अब हूँ मैं पूरा टॉक्सिक, तो पहले आई वाज लाइक व्हाई इज ही कॉलिंग हिमसेल्फ टॉक्सिक, देन आई वाज थिंकिंग नहीं, मे बी इट्स लाइक अ वर्ड प्ले व्हिच मीन्स दैट ही टॉक्स सिक, यू नो, ही थ्रोज इन सिक बार्स। एंड यहाँ पे भी स्पेलिंग वैसे इन्होंने लिखा है जीनियस लिरिक्स वालों ने, सो ही दे रोट टॉक्सिक, लाइक यू नो सिक बातें बोलना। Face to face, no, you fucking talk shit. And then there are lines where जहाँ पे बोलते हैं कि मुझे किसी और की तरह नहीं बनना, like yes he listens to them but I don't want to become like them, मुझे एक ठीक ठाक रैपर बनना है, you know, एक इज्जत कमानी है इस community में, and all of that. That like I'm very clear. He is telling you that with this intro song, what kind of a person he is. He has clarity of thought. उसे पता है, like he knows, he has a full plan of how he wants his career to go about, and he has clarity of thought. Basically, this guy. I like such guys, like guys, girls. Basically, I like such people. कला की कमी किस में कितने बार लेट सी तेरे कर पर चल तू जैसे वो हो, डेड सी ना प्रोड्यूसर। हाँ, जैसे ना मैं किसी प्रोड्यूसर का बेटा हूँ ना किसी एक्टर, लाइक I don't have that backing with me, so whatever I'm going to do, it's like full मेरी मेहनत के ऊपर है। एंड ना ही दुनिया से कुछ अलग करने की मेरी ख्वाहिश, लाइक मैं कुछ बहुत ही कोई तोप वाला काम नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है नहीं। हाँ, ना मुझको बनना M&M ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक ठाक सा रैपर, दैट्स एग्जैक्टली। पैसा इज्जत आर्ट सपना, यही छोटा सा रूम मेरा 240 स्क्वायर फीट, या 240 पेज की कॉपी, नॉट स्क्वायर फीट। यस, राइम स्कीम रैप और थोड़ी बहुत वेरी 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 नाइस ब्यूटिफुली यू नो written thoughts over here. Fundamentals, right? Like that's what I'm saying. Like his basics are very clear. He's very very clear in his thought process. Then anything else that I thought was really great? So these, when he talked about himself, I really like that. Let me just go through more lyrics if I find something really. एक इक्का का नेम ड्रॉप भी था। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट रेफरेंस कि ये अगली लाइन इक्का के लिए नहीं है, ऐसा कुछ उसने बोला था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली। सो या देन वर्स 2 में, हाँ, आला बाला आला बाला आला बाला सिलेबल आजकल लोग मारे, व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि इसने 2-3 बार यही चीज़ बोला, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, सो that I did not understand. खुद के और दूसरों के पत्थर उछाले लोग, करेक्ट। कभी डर से नहीं जिया, कभी ना है खौफ, ग्रेट, गुड फॉर यू कर्मा, गुड फॉर यू। पता मुझे है कभी ना कभी तो आनी है मौत, पर जिंदगी नहीं डर में बितानी बस, करेक्ट। वाओ, दिस इज सो मोटिवेशनल, एंड आई फील कि ये सिर्फ उस पे, लाइक आई फील दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग all of us should adopt to you, because I think a lot of people just spend their life fearing कि अगर मैंने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दिया तो वैसा हो जाएगा। So वही है, मतलब कभी डर से नहीं जिया, कभी ना है खौफ, तो वही है, क्योंकि पता है कभी ना कभी तो आनी है मौत। सो आई डोंट वांट एनी रिग्रेट्स इन माय लाइफ, सो पर जिंदगी नई डर में बितानी है बॉस, गुड। और मेरे गाने ही मेरी कहानी बोलेंगे बॉस। यस यस, that I was a legend, that I am a legend and I will be a legend, ये fact है। Yes, yo,
I like this confidence. अगर तू मर चुका पहले ये flashback, तू नहीं Undertaker but a dead man. तो ये I'm guessing the Undertaker I know is of course a wrestler, but a dead man. Is dead man also some wrestler's name? ये है Battleground No 10 Cent. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये किसी गेम का रेफरेंस है. Battleground No 10 Cent. वो पैकमैन वाला, बिकॉज ही इज ऑल्सो नेम ड्रॉप पैकमैन. तेरा मुंह चले बस व्हाट द पैकमैन. सो बिकॉज पैकमैन गेम का वो ऐसे फेस ऐसे चलता रहता है एंड देन ही ईट्स अप गॉबल्स अप एवरीथिंग. सो तेरा मुंह चले बस व्हाट द पैकमैन. सो या और जो एंड ही इज लाइक छोड़ो यार. अब मैं नहीं बोलूँगा, मतलब समझदार को इशारा काफी है. ऐसे ऐसे करके उसने जस्ट द वे द सॉन्ग एंडेड वाज लाइक, बिकॉज इट फेल्ट लाइक कि अच्छा अभी आगे एक और कुछ वर्ड्स आने वाला, बट इट जस्ट एंडेड देयर. सो really nice intro song. I'm gonna keep my final judgments at the end. At least 6-7 गाने सुन लूँ, फिर मैं एल्बम के बारे में कुछ एक concrete बता सकती हूँ अपने लिए. But I think this as an intro track is absolutely fantastic, and I have always emphasized this कि एक intro और an outro track कितना important होता है एक एल्बम के लिए. So yeah, let us move on to the next song of the album, which is called Beat Do. Okay. Now Beat Do is produced again by Deep Kalsi. अच्छा उसमें नहीं, इसमें Deep Kalsi ने प्रोड्यूस नहीं किया था, इसमें मिक्स एंड मास्टरिंग किया था. इसमें प्रोडक्शन इज ऑफ Deep Kalsi and mixed and mastered by him also, written, performed and composed by Karma. So let's check out this song, Beat Do. Okay, देते हैं. ये सब डमारिस मैं स्मारिस, मेरा जैसा एक ये 45 बैक में 5-0 2 कॉमर्स गॉट पेपर ऑन इट बिन फार्मर्स 1 into infinity पावर, तब भी बिल्कुल भी नहीं दिखावा. तू जो भी है मैं ग्रैंडफादर, बस एक बार मिल विद द बाबर. फैला हुआ नेटवर्क बिन टावर, आई मीन ए टावर पर दैट्स फॉर लवर. मैं सावन में लाता शोला मीन सावन में लाता मैं 16 बार्स और मैं खाता होला करियर्स में लाता. शब्द लिखे 50 तोला में बिका 50-16 कैसे कमाता, पर मौका मैंने छोड़ा कस पैसा आता हर 2 रात पैसा जाता हर सुबह. लंदन में लेन देन चलता रहता और मैं रहता घर से बाहर. लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे. हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे. इनको बीट दो हमको बीट दो, ये चेक. लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे. हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे. इनको बीट दो हमको बीट दो, या हमको बीट दो. हम लिखेंगे बोले सारे पर लिखते नहीं, जो बोले के मैं देख लूंगा बार. मैंने बार पूछा दिखे नहीं. कर्मा ना खरा कुछ पूछते नहीं, कर्मा के खर्चों में खुश मैं नहीं. कर्मा कमाना जब कुछ मनी तो कर्मा के कमरे में में कमाई और लिखाई है तबाही. सीन में जगह बनाई काफी को जगह दिखाई. असली लिख रहे यहाँ गाने वहाँ कंपोजिशन टपाई. बोले रिमिक्स बनाना हार्ड, लो भाई मेरा ट्राई. उसको जान दो जो आ रही उसको आन दो, जाने वाली तो चली गई आने वाली पे ध्यान दो. और गोला नहीं खाया फिर भी सारे बोले बम बम, माल नहीं फूका फिर भी सारे बोले बम बम. पहने गुची याद आ रहा वो चमके जब भी आए. गिरे सारे लौंडे कसमें झूठी खाए. झूठे वादे करके चाहे के उसको पटाए, पर वो इनका खाब इनके हाथ में ना आए. हंसी तो फंसी वो सारे सीखो के कैसे हैं बनाने गाने, वो भी बिना चीट कोड बिल्कुल डिट. Despacito, मैं वही सोच रही हूँ कहाँ सुना था मैंने गाना. I'm sorry I paused, but I was like, okay. Gangs be gagging on the mic, been a deep thought. My mind is fucked up in dumb fuck के संपर्क में सम वक्त और हम सब become top. ये कम वक्त है सब फक्त, कहने हैं सम शब्द के संकट के कम वक्त में. जब सपने समझा गए हम थक, तब हम मर के अमिताभ बन कर ली जनरल की गर्दन जकड़. सब इस बढ़ के दम पर लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे. हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे. इनको बीट दो हमको बीट दो, ये चेक. लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे. हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे. इनको बीट दो हमको बीट दो, या Okay, go Deep Kalsi. Nicely done.
I like this. गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हमें 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे इनको भीड़ दो हमको बीट दो yeah. I'll go back. There are so many. Like I'm pretty sure मुझे सब नहीं समझ आएगा, ठीक है, but I want to go through the lyrics once more. इसमें lyrics दे और so we can just look at, you know, forward कर करके. Oh my god! And I paused in between because I was thinking यार ये tune कहाँ सुनी है? Then I realized it's like Despacito. Okay, great, awesome. Great. Let us begin. This beat is really nice. ये सब डमारिस में हाँ, ये सब dumb artist, I'm smartest. Okay. स्मारिस मेरा जैसा एक ये 45 बैक में 5 ये सब डमारिस में स्मारिस मेरा जैसा एक ये मेरे जैसा एक ये 45, मतलब मेरे जैसा एक और ये है 45, you know, but I am only one unique. Does it mean that? ये 45 बैक में 50 दो कॉमर्स करते Got paper on it. Oh, pepperoni. Oh, that's like a word play he did there. My goodness. हाँ. ये सब डमारिस इसके तो bars I will be like okay, you know, dumb and dumber. In my case, I would be like स्मारिस मेरा totally. जैसा एक ये 45 बैक में 50 दो कॉमर्स गॉट पेपर ऑन इट बिन फार्मर्स 1 into infinity पावर तब भी बिल्कुल भी नहीं दिखावा तू जो भी So yeah, this is like a flex. तू जो भी, but I am grandfather. हम बापों के बाप हैं. Does it mean that? है मैं ग्रैंडफादर बस एक बार मिल विद द बस एक बार, and this is a oh, that's a really cool wordplay. I mean, you would think that, you know, bus ek bar, but sounds like Akbar. Mill with the barber. Oh my goodness. But it means he's actually saying bus ek bar mill. You meet me once with the barber. मैं सावन में लाता शोला, of course. मैं बारिश में I bring the fire basically. दो शब्द लिखे 50 तोला में बिका. Listen, like he's telling, like मेरे शब्दों का भी इतना भाव है, देखो. दो शब्द लिखे लेकिन वो भी 50 तोला में बिका. वो कौस पैसा आता हर दो रात. Listen, this is totally flexing, हाँ. It's totally flexing in the song. और मैं रहता घर से बाहर. फिर भी शांत लिखते जा रहे, हमको बीट दो. हम है 300 के पार. 300 के पार? 300 के पार? What does that mean? Is it reference to the movie or something? हाँ, इनको भीड़ दो, but हमें बीट दो. बोले सारे पर लिखते नहीं. कर्मा के खर्चों पे खुश मैं नहीं. कर्मा के खर्चों पे खुश मैं नहीं. Why are there people who are criticizing him also? हाँ, ऐसा कुछ है? टेराबाइट में कमाई. असली लिख रहे हैं हाँ गाने. उसको जान दो, आने वाली पे ध्यान दो. माल नहीं फूका फिर भी सारे बोले. कसमें झूठी खाई पर वो भी इनका ख्वाब कि कैसे है बनाने गाने, वो भी बिना चीट कोड. वो एक जैसी साउंड बीट फ्लो इन डम्फा कहने हैं सम शब्द के अमिताभ बनकर. ओ माय गॉड, आर यू सीइंग दीज लाइन्स? दिस इज तो साउंडिंग लाइक वन साइफर सॉन्ग. रियली I मतलब ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल दे. इज इट स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टू समबडी? बिकॉज ही इज बीइंग रियली लाइक, यू नो, कर्मा के वजह से तुम्हारा, यू नो, चलता है. वी आर, यू नो, पैसा, यू नो, इनकम चलता है एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ बोलते हैं पर लिखते कुछ नहीं है. असली गाने, यू नो, एक ही टाइप का उनका फ्लो है एंड एक ही टाइप का बीट है एंड ऑल ऑफ दैट. Then talking a little bit about betrayal over here. फिर माल नहीं फूका फिर भी सारे बोले. Okay, like burn. कसमें झूठी खाई
पर उनका वाओ, व्हाट इज ऑल दिस? इतना गुस्सा कर्मा पे, आई मीन कर्मा के अंदर इतना गुस्सा. लिखते जा रहे हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे इनको भीड़ दो हमको भीड़ दो इस भीड़, इस इनको भीड़ दो, does that word mean something else? भीड़ दो, because इनको भीड़ दो, that doesn't make any sense to me. इनको भीड़ दो, हमको भीड़ दो, because he's not saying भीड़, he's also again saying भीड़. So that definitely means something which, जिसका मतलब मुझे नहीं पता, तो वो पंच मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें. See, I'll be very honest, जहाँ समझ नहीं आ रहा है वहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो you guys are there to help me out. गाना बहुत ही अच्छा, especially when he does that Despacito वाला thing over there. ओए हर, इसके बाद ही है. उसको जान दो, जो आ रही उसको आन दो, जाने वाली तो चली गई, आने वाली पे ध्यान दो, और गोला नहीं खाया फिर भी सारे बोले मामा, माल नहीं फूका फिर भी सारे बोले मामा, पहने गुची याद आ रहा वो चमके जब भी आए, गिरे 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 सारे लौंडे कसमें झूठी. Like how amazingly he just converted the flow over here to that song to match the song. See, that is something that I totally appreciate. Even though चलो सारे पार्ट्स मुझे समझ नहीं आ रहे किस पे डायरेक्टेड है, क्या exactly like what he's trying to say, but hello, as per like just as a listener when I'm listening to the song, I am totally jamming to it. I'm totally jamming to it. झूठी खाए, झूठे वादे करके चाहे के उसको पटाए, पर वो इनका खाप इनके हाथ में ना आए, हंसी तो फंसी वो सारे सीखो के कैसे है बनाने गाने, वो भी बिना चीट कोड बिल्कुल डिट्टो. कैसे गाने बनाने, like he's a little bit talking about plagiarism over here also. एक जैसी साउंड बीट फ्लो, गैंग्स भी गैगिंग ऑन द माइक बिना डीप थॉट, माय माइंड इज fucked up in dumb fuck के संपर्क में सम वक्त, और हम सब भी कम ठप, ये कम वक्त है सब भक्त कहने हैं. Come on, absolutely. So did somebody plagiarize a song or something like that? It looks like, but overall, wow, the song completely supersedes the first one. I mean, अगर मैं song to song compare करूँ, this is a much superior song, I would say. Beat दो. Wow, fantastic. Fantastic. This is a totally different, like, I have not seen this side of Karma. यहाँ पे मैं बोल रही थी, so humble. He's totally fire in the song. He's totally fire in the song. But I love it. I love it. But once again, you know, there is still a sense of humbleness when he's singing. I don't know. It's just the feeling I have when I'm listening to this guy. Wow. Overall, I think very much superior than ICU. The song, this is takes me to a completely different world and mood. So yes, that was the second track. Let's move on to the third one, which is called Fate. Now this song, wait, इसमें कौन है credits में मैं देख लूँ. Again produced by Deep Kalsi. So Deep is okay. Ooh, mixed and mastered by Ryan Summer. I'm excited. ये नाम जैसे ही मैंने देखा, I'm already excited now for this song. Do I need the subtitles? हिंदी में closed captions है, ठीक है, रहने दो, subtitles on रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. All right, let's listen to Fate. Krevitsa. Oh, this video is gonna be great, I feel. बोले नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोद मुझे. नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे. नसीब से हम कैसे जीते, कैसे आए हम यहाँ पे बिना जीत के, हमको ताने भी मारे, बोला गाने बेकार है, देखो सारे के सारे नीचे घसीटे. Wait guys, I want to start this again. पहले तो इसलिए मैंने ना जैसे Ryan Summers देखा mixed and mastered by him, I was like, hello, this song is going to be great because whatever of his work I've listened to, it's great. So again, वो 4-5 लाइन पहले, so I'm guessing, you know, there are people who have mocked him
एंड whatever, you know, जो बीट दो में मुझे लग रहा था कि काफी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है वो किसी पे, तो सो आई एम गेसिंग अ सेट ऑफ पीपल, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट द सॉन्ग अगेन बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग द साउंड ऑफ इट. बोले नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे. चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोद मुझे. नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे. अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे. नसीब से हम कैसे जीते, कैसे आए हम यहाँ पे बिना जीत के. हमको ताने भी मारे, बोला गाने बेकार है, देखो सारे के सारे नीचे का सीट है. पर मन 3000 की जॉब से मैं पहुंचा 20,000 की जॉब पे. अब शौक मेरे देख के काफी आतिश कुमार भी चौंकते. जोश एक ही बगाड़ते बहुत थे, अब वो बीच बाजार में रोकते. साले अजीब गवार से लोग हैं हम, अब भी शीश झुका के बोलते. शो पे कुछ 30,000 से लोग थे, पहले सीधे साधे लगते, अब 25 हिला के खोजते. तभी हम फीस बढ़ा के बोलते. या तुझे बस दिखता है बैग जो पीछे टांगा मैंने लाख का. तुझे पता भी है साले में ATM का गार्ड था. Really? आज भी मैं गार्ड हूँ परिवार का और आर्ट का. कलम बैसाखी बनेगी जब होने लगूंगा मैं 60 का. Wow. आज भी याद मुझे कि मैं क्या हूँ और क्या था. आज भी कभी किसी की नहीं चाटता. Let's go. बोले नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा So चढ़ा that's था Greek शौक Kalsi, मुझे. right? चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोद मुझे. नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे. अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे. फैंस का प्यार ही बहुत है, उस पे सवार हूँ ब्रेक नहीं मारा. स्टोरीज में खेलते लौंडे सामने एक नहीं आ रहा. इनके गाने नहीं चल रहे जब तक कलेश नहीं आ रहा. इतना पॉजिटिव हो गया गेम में टेस्ट नहीं आ रहा. कर्मा पे पैसा ही बहुत है, कर्मा तो वैसे ही गोट है. हुई अभी जय कैसे काम रहूंगा तो सीधे मौत है. कुछ बंदों की नीयत में खोट है, कुछ बंदे वसीयत की चोट है. वो बंदे बाप के पैसों पे चौड़े, हम उनके बाप भी टोटे. तेरे शहर में तेरे जैसे बहुत हैं, तेरे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं. हक से कमा रहे हक से खा रहे, तेरे शहर में जब आ रहे, जिसको अपना ना पता हो ऐसा कोई नहीं. बोले नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे. चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते गोद मुझे. नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे. अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे. या पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा. Yes. या पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा. दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा. दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा. बोले नसीब से बड़ी नी Yes. चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक That's the मुझे. song. चढ़ा मैं बीट पे That is करा getting डिफीट, added to अब the बोलते playlist. Okay. Loved it. Loved it. I loved it. Nailed it. Literally nailed it with this song. Oh. Yes. We're gonna of course go through the lyrics. My goodness. Wait. Firstly, this music is awesome. Deep Kalsi, what a fantastic job. Absolutely love this music. Then, बोले नसीब से बड़ी नी चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे.
मतलब he's beaten, you know, बोले नसीब से बड़ी नहीं चीज, बट अजीब सा चढ़ा, मतलब ही इज लाइक कि अगर तुम्हारे किसी ने बोला होगा भाई तुम्हारी किस्मत में तो यही लिखा है, बट ही इज लाइक नहीं, मैं बदलूंगा अपनी किस्मत। यो चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट अब बोलते गो चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते हैं कोट मुझे, बिकॉज आई मेड माई ओन डेस्टिनी, आई कार्व्ड आउट माई ओन पाथ एंड नाउ दे कॉल हिम द गोट। यस, मुझे नसीब से बड़ी नहीं चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक एंड नोबडी वुड, एवरीबडी वुड से ना कि भाई तुम तो स्टैमर करते हो, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग योरसेल्फ टू बिकम अ रैपर और समथिंग लाइक दैट, बोला होगा लोगों ने, बोला होगा, आई एम गेसिंग। आई विल वॉच हिज डॉक्यूमेंट्री, डोंट वरी गाइस, आई विल वॉच हिज डॉक्यूमेंट्री। मुझे अब जब भी मिलते हैं आंखों Oh में man, दिखता this खौफ song देखो is very नसीब funny. से हम कैसे जीते हम नसीब से कैसे हम जीते, देखो अब मैं बताता हूँ। कैसे आए हम यहाँ पे बिना बिना चीख चीख के, के yes. हमको ताने भी मारे बोला गाने गाने बेकार बेकार है है। देखो सारे के सारे नीचे घसीटे Pretty understandable. 3000 की जॉब से मैं So I didn't know this. तो पहले तो आई एम गेसिंग कि बिफोर, बिकॉज उसे नौकरी नहीं करनी थी, जैसे उसने बीट दो पे बीट दो बोल रही हूँ, आईसीयू में बोला कि आई डोंट वांट टू डू लाइक अ रेगुलर जॉब, सो आई एम गेसिंग ही यूज्ड टू डू लाइक अ रेगुलर जॉब। एंड वो एटीएम वाला, एटीएम का गार्ड, आई हैड नो आइडिया, ऑफ कोर्स मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, अब वो बार मुझे और अच्छे से हिट करता अगर मैंने पहले डॉक्यूमेंट्री देखी होती, बट इट्स ओके, आई एम स्टिल लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज हसल। सो per month 3000, so पहले job I think I'm guessing he used to get 3000 per month, then he went into a job which gave him like 20,000. मैं पहुंचा 20,000 की जॉब पे अब शौक मेरे देख के काफी आतिश कुमार भी चौंके, मतलब आई डोंट नो ये कौन है आतिश कुमार, हु इज ही? अब शौक भी मेरे- चौंकते जोश एक ही भगाड़ते बहुत थे जोसे की भगाड़ते भगाड़ते बहुत थे, अब वो कोई उसको भगाता था, लाइक आई थिंक देयर वर पीपल मे बी यूज्ड टू बोलते थे निकल यहाँ से, ऐसा कुछ, जस्ट लेट मी नो व्हाट दिस मीन्स एग्जैक्टली, क्योंकि अब वो बीच बाजार में ही मुझे रोकते हैं मे बी कि हाँ आई रिकॉग्नाइज यू, एक सेल्फी हो जाए टाइप्स। हाँ, अब वो बीच बाजार में रोकते साले अजीब गवार से लोग हैं हम अब भी शीश झुका के बोलते शो ओके, पे कुछ 30,000 से लोग थे शो पे कुछ 30,000 से लोग थे। सी दिस राइमिंग इज रियली नाइस। पहले सीधे साधे लगते अब 25 इलाके खोजते तभी हम फीस तब जाके फीस बढ़ा के हम बोलते हैं, सो या आई बढ़ा अंडरस्टैंड। के बोलते या तुझे बस दिखता है बैग जो पीछे टांगा मैंने लाख का बट तुझे नहीं पता, सो वही है ना कि दिस इज दैट्स द थिंग व्हेन यू, एंड ये मैंने बहुत आर्टिस्ट के साथ ऐसा sort of होते हुए देखा है कि एक लेवल का जब सक्सेस आर्टिस्ट को मिलने लगता है, ऑल ऑफ दैट, देखो दो चीज़ें होती है, या तो एक टाइप ऑफ ऑडियंस वो होती है जो बोलते हैं यस आई नो योर स्ट्रगल एंड जो तुमने किया अपने मेहनत से किया, प्राउड ऑफ यू, दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट। एक सेकंड कैटेगरी होती है जो सिर्फ सक्सेस देख के बोलते हैं इसकी तो किस्मत से इसको सक्सेस मिला है, हाँ ठीक है, ये देखो सक्सेस मिला है तो देखो कैसे फ्लेक्स कर रहे हैं, हाँ इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इतना पैसा जो आ गया है ये वो। So see, I completely like this line totally hit me because ये कॉर्पोरेट में भी होता है, आई डोंट नो लाइक मोस्ट लॉट ऑफ यू मे बी आर वर्किंग, लॉट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट जो कॉर्पोरेट में हैं अगर आपको प्रमोशन वगैरह मिलता है देयर वुड बी अ सेट ऑफ पीपल हु वुड बी लाइक अरे तो यू नो बॉस का चमचा है इसीलिए इसको प्रमोशन मिला है, इसको अपने बूते में नहीं मिला, दे डोंट नो हाउ मच यू आर वर्किंग, सो दैट्स यू नो दोज जजी पीपल who are sort of jealous बेसिकली, वो जो सारे वो होते हैं ना कि मेरे 1 लाख का बैग देख रहे, बट जो उनको पता नहीं है कि भाई मैं भी एटीएम में काटता हूँ, सो दैट्स जस्ट वाओ, लुक एट द कॉन्ट्रास्ट इन द तुझे लाइन। पता भी ये साले में एटीएम का गार्ड था, आज भी मैं गार्ड हूँ परिवार परिवार का का, और आर्ट का, कलम बैसाखी बनेगी जब होने लगूंगा मैं 60 का, कलम बैसाखी बनेगी जब होने लगूंगा मैं 60 का, कलम बैसाखी बनेगी, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग दिस इज सॉर्ट ऑफ रेफरिंग बिकॉज ये अपना एज का भी बता रहे हैं कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा कलम बैसाखी बनेगी, बिकॉज बैसाखी तो एक फेस्टिवल है जिसमें वो फसल की कटाई होती है, सो आई एम नॉट एबल टू रियली गेट द पंच ओवर हियर ऑनेस्टली।
का आज भी याद मुझे कि मैं क्या हूँ और मैं क्या था। I know where I came आज भी from. कभी किसी की नहीं चाटता। Let's go. बोले नसीब से बड़ी नहीं चीज This पर hook एक is अजीब great. सा चढ़ा था शौक मुझे। चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट तब बोलते गोट मुझे। नसीब से बड़ी नहीं चीज पर एक वीडियो अजीब भी सा बढ़िया चढ़ा है, था शौक वीडियो भी मुझे। बढ़िया है। अब जब भी मिलते हैं आंखों में दिखता खौफ मुझे। फैंस का प्यार ही बहुत है उस पे सवार हूँ ब्रेक नहीं मारा। Correct. स्टोरीज में खेलते लौंडे स्टोरीज में बहुत खेलते हैं बट सामने एक नहीं आ रहा, मतलब फेस टू फेस बोलने की हिम्मत नहीं है, बट स्टोरीज में बहुत डालते हैं लोग, यू नो, पीपल ऑन इंस्टा। So this is again one more you know sort of thing that he is talking about anonymity or technology also in the sense, ठीक है, बहुत लोग जैसे अपने इंस्टा स्टोरीज में बहुत कुछ डालते हैं अबाउट पीपल, यू कैन मेक लाइक इट कुड बी फेक अकाउंट्स ऑल्सो, समथिंग विच ट्रैश टॉक अबाउट समबडी, बट सामने आने की हिम्मत नहीं है उन लोगों की, सो दे आर हाइडिंग बिहाइंड द मास्क ऑफ एनोनिमिटी ऑनलाइन. सामने एक नहीं आ रहा, इनके गाने नहीं चल रहे. So this of course he is saying in the context of other his peers basically कि story में maybe बहुत flex मारते हैं ये लोग but सामने आके कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है. So इनके गाने भी नहीं चल रहे जब तक कलेश नहीं आ रहा, मतलब unless and until you are putting yourself in middle of some controversy, your songs are not getting popular because you need controversy to get attention from the audience. That's what he's trying to say, I guess. जब तक कलेश नहीं आ रहा, इतना पॉजिटिव हो गया गेम में टेस्ट नहीं आ रहा. कर्मा पे पैसा. I like this. So I'm guessing this is like COVID sort of का reference because वो COVID positive है तो sense of taste चला जाता है, तो इतना positive हो गया कि taste. That was nice. I like. कर्मा पे पैसा ही बहुत है. बहुत है. कर्मा तो वैसे ही गोट है. Yes. अभी जय कैसे काम रहूं. I love this line. उस टाइम मैंने pause नहीं किया. But I love that he sort of, you know, gave a shout out to सीधे मौत and he said, you know, वैसे हो रही अभी जय, but he's talking about AVJ Encore and काम, दोनों का नाम लिया, काम रहूंगा तो सीधे मौत. Wow, that was nice. Karma, I know what you did there. That was nice. काम रहूंगा तो सीधे मौत है. कुछ बंदों की नियत में खोट है, कुछ बंदे वसीयत की चोट है. वो बंदे बाप के पैसों पे चौड़े, हम उनके बाप भी टोटे. Wow, pretty understandable this line. Nice. में तेरे जैसे बहुत हैं, तेरे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं. हक से Wow. कमा रहे, हक से खा रहे, तेरे शहर में जब आ रहे, जिसको अपना ना पता हो ऐसा कोई नहीं. बोले नसीब से बड़ी नहीं चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे. This song is absolutely like I'm totally impressed. चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, जब भी मिलते हैं आंखों में दिखता खौफ So मुझे. that's the hook. दुनिया पैसे के पीछे, मेरे पीछे पैसा. Oh, I like this. दुनिया पैसे के पीछे, मेरे पीछे पैसा. दुनिया पैसे के पीछे. Very well arranged. Ryan Summers mix and mastering. Deep Kalsi. बोले नसीब से बड़ी नहीं चीज पर एक. I'm so impressed. Yeah, I'm so impressed. So yeah, really great lyrics. I wish I could also. I feel that, you know, even in beat though, like I myself, this is my own shortcoming that I totally couldn't get all the bars over there. But at least Fate I got. So yeah, वही नसीब. He's like, I made my own destiny. हाँ, सब लोग मेरे नसीब में बोल रहे थे कि नहीं है, नहीं होगा and all that, and I beat it. So that's the third song. I am so impressed. I think the third one is at the top for me right now. Oh wow, what a song. That is getting added to the playlist, guys. That's playlist worthy. All right, I'm going to listen to the fourth track right now, which is called Price Tag. Let's watch this. Uske pehle, let me just look at the credits. Deep Kalsi producer, mixed and mastered by him as well, composed by Karma and all of it. All right. Cool. And the video credits are over here. Director Siddharth Unyal, Raghav Giroti. Okay, let's see how this video is and how the song is. Price Tag. ये flex वाला गाना है क्या? Price Tag. Yo. Check. Feeling a little cold. दीप कलसी के संगीत पे कर्मा. तेरा दून का मेरा खून,
देसी चलचित्र, नाइस प्रोडक्शन हाउस. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, ये है रखते अपने पास, और जब स्किल्स की हो बात ये बस आंखों से छूते. हजारों के कपड़े, इंटरेस्टिंग. लाखों के जूते, हम भी रखते अपने पास और ना करते इनसे बात, ये बस लातों के भूत है. एक्सक्यूज मी, कपड़ों से ज्यादा बार्स प्राइस्ड आउट. सब कुछ महंगा तब भी हम्बल नियत नाइस थी. मैं भी बन के रहता इतना ज्यादा आइस्ड आउट, खाली चाय भी पीऊं तो fucking nice. नंबर 3-2 मैं बूथ में घूट पीकर, ट्रूथ स्पीकर इन द बूथ. यूट्यूब पे न्यू बीट पर बजूका छूटे कर महसूस थ्रू द स्पीकर. तू कूल एज आइस ब्लू बट डूड बी ट्रू. हीटर अटूट वजूद लेकर जब टूटता, थूकने पर मैं थूकता. पीस मेकर परस्यू द न्यू टीचर. अब क्यों तुम मुफ्ती के टप, क्यों तुम घुटने पे जाऊं शूट पे फूकते हुए माय व्यूज तेरी प्रोड्यूस बिच. बाउ डाउन टू पेनमैनशिप, तेरा भला है मान बात. लेजेंडरी feels like मदारी में इरफान साहब. यह है example of making it बिना beef के. If I'm not taking your name एहसान मान ले ले. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, ये है रखते अपने पास, और जब स्किल्स की हो बात ये बस आंखों से छूते. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, हम भी रखते अपने पास और ना करते इनसे बात, ये बस लातों के भूत हैं. I see too many losers acting like winners. ये क्यों बने खुदा जब है सारे sinners. I'm the genius and the gene greatness. तेरे jeans में नहीं G, you're a gene fakeness. Well done. आ गए हर दाम वाले rappers. ये couple shows, ये Instagram वाले rappers. ये करते couple shows फिर अनजान वाले rappers. सुबह viral से flop वाली शाम वाले rappers. I can destroy you, you know मैं iconic हूँ. तुम्हें मैं मिला पहली बार, मुझे आया क्यों नहीं clue कि तुम हो टॉक्सिक और फेलियर बस हाइप वाली भूख. टीवी पे ऊंची शिटी खबरें, हाई पार्टी न्यूज़. एंड दिस इज मी, दिस इज कर्मा, दिस इज व्हाट यू कॉल अ नाइस रैप. रियलाइज दैट सक्सेस का ऊंचा प्राइस है. इजी मिलेगी सरप्राइज देके गायब है. इट्स लाइक अ बिच, यू हैव गॉट टू पे द प्राइस टैग. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, ये है रखते अपने पास, और जब स्किल्स की हो बात ये बस आंखों से छूते. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, हम भी रखते अपने पास और ना करते इनसे बात, ये बस लातों के भूत हैं. That's it. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते. Let me open up the lyrics. A lot of things he said. He said a lot of things. Wait. Price tag lyrics. कर्मा आ जाए. Genius lyrics किधर है? Yes. Oh, his name is Vivek Arora. Okay. All right. So I feel song-wise, not really my jam, I would say. Usually I do enjoy the slow raps. Here, I wouldn't say like it was not that great, but I would say that, yeah, it's just about decent for me. Like how Fate completely just caught my attention. This is probably a song that I'll probably give a pass, but the lyrics are important. Like in terms of listening, I would say, हाँ ठीक है. It's not कि मैं completely like I'm gonna play it on repeat. I don't know, हो सकता है आपका favorite गाना हो Price Tag, but that's just about the way the song is arranged. But I definitely want to, pay a little bit more attention to the lyrics because that's important. The lyrics is something that impressed me here. So, हजारों के कपड़े, लाखों के जूते. See, the hook was not all that impressive for me. मतलब इतना मुझे मजा नहीं आया hook सुन के. But verses काफी अच्छे थे. Okay, let's go to the first verse. Yeah, excuse me, कपड़ों से ज़्यादा bars priced out.
सब कुछ महंगे तब भी humble है, like you know he's talking about he also has all of these things. It's not like he hasn't achieved all that fame and money, but there are people who just flex it on socials, but he's not that kind. See, मैं भी बन के रहता है इतने ज़्यादा आइस्ड आउट, खाली चाय भी पीऊँ तो fucking आइस नंबर 3-2 मैं बूथ में घूट पीकर. What does that mean? Truth speaker in the booth, YouTube पे new beat. अटूट वजूद लेकर. Just couple of lines which I thought were really really good. मैं तू का peacemaker, no. अब क्यों तुम ऑफ टिकट, अब क्यों तुम घूमते पे जाओ शूट पे फूकते हुए. माई व्यूज डेली प्रोड्यूस विच, दैट्स फाइन, अंडरस्टूड. बो डाउन टू पेनमैनशिप, तेरा भला है, मान बात, यस. लेजेंडरी फील्स लाइक मदारी में इरफान साहब, सो dropped like he did a nice wordplay over there with the movie and of course the actor name. ये है example making it बिना beef के. I think he takes a lot of pride in sort of, I don't think Karma is anyways was ever involved in any kind of beef. Even if there were people who were mocking him or criticizing him, whatever, उसने कभी वैसे like one-on-one किसी artist के साथ beef नहीं किया, या किया है I'm not aware of, but he is pretty much clearly saying that I've made it without getting attention from the beef. This is like my music has already resonated with people. If I'm not taking your name, see, he's like, अगर जैसे मैं बोल रही थी ना, लोगों ने मजाक भी उड़ाया है, but he never got into like a one-on-one name calling over here. So if I'm not taking name, एहसान मान ले ले, हाँ. So very clearly he said it, very clearly he said. So I think the lyrics, he of course penned down a lot of his thoughts about what he thinks of all of these people who say a lot of things, but he doesn't. If they think that if he is silent, he's never going to talk about it, but indirectly he does. Then the hook comes in. See, yeah, verse पे, see too many losers acting like winners. ये क्यों बने खुदा जब है सारे sinners. Yeah, I'm the gene, the genius, gene, the greatness. तेरे genes में नहीं जी. You are a G in fakeness. Well done. Yup. आगे हरदाम वाले rappers, ये couple shows, ये Instagram वाले rappers, ये basically you're fake. You flex yourself on the social networking sites, but you have basically no talent. सुबह वायरल से फ्लॉप वाली शाम. I can destroy you, you know मैं iconic हूँ. या तुम पे मिला पहली बार मुझे, तुम्हें मिला मैं पहली बार मुझे आई कोई नहीं क्लू. You're so forgettable. Like he doesn't even care कि तुम हो टॉक्सिक और फेलियर. बस ये हाइप वाली भूख. I am glad that he's calling out the toxicity also, like because I feel आर्टिस्ट के साइड पे भी बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं एंड फैंडम साइड में भी बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं. एवरी फैंडम हैज टॉक्सिक पीपल. आई रिमेंबर some person writing in my comments, जिसमें मैंने रिप्लाई भी किया था. इज़ लाइक कि आप इस आर्टिस्ट पे रिएक्ट मत करो बिकॉज इसकी फैंडम बहुत टॉक्सिक है. मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा कौन सी फैंडम में टॉक्सिक लोग नहीं है, कौन सी फैंडम में टॉक्सिक लोग नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ टॉक्सिक पीपल, I'm not going to let the toxic people decide what content I put out on my channel. I'm sorry, I refuse to do that. अगर कोई भी toxicity फैला रहा है comment section में, I will block that person. मैंने लिखा था ये comment में that toxic people will be blocked from the platform. Anyways, I feel इस मामले में YouTube काफ़ी सारे ऐसे जो थोड़े से जो थोड़े से खराब टाइप के कमेंट्स होते हैं या थोड़े टॉक्सिक कमेंट्स होते हैं, यूट्यूब हैज़ इट्स ओन फिल्टर ऑल्सो. तो वो स्पैम कमेंट्स में भेज देता है एंड इट ब्लॉक्स दोज कमेंट्स. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट. एंड इट्स ऑलवेज, सी इट्स जस्ट वन लाइफ, ठीक है.
तो आपको anyways you can't be a people pleaser, you cannot be a people pleaser, you can't, you know, सबको आप खुश रख नहीं सकते, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है. सो इफ पीपल वांट टू बी टॉक्सिक, आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी दुनिया में भी आपके सर्कल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे आप ऐसे इनकाउंटर करते हो, प्लीज कट देम ऑफ. आई वुड highly suggest that. I would highly suggest that. There's no point wasting your time with those people. TV पे ऊंची खबरें, hypoting news, blah blah blah. This is me. This is karma. This is what you call nice rap. Yep. And realize that success has always a price, a very high price. No. And yeah, that's about it. That's about the song. So yeah, the whatever he talked, that I think was important. In terms of how I found the song, I wouldn't say I got very, very impressed. I'll be very honest. Like, because I think Fate sunne ke baad, the song was a little underwhelming for me, to be very honest. It was a little underwhelming for me. But nonetheless, I mean, ye hoga kisi ka favorite gana. If it is your favorite song, no offense, just not my jam. That's all. That's all I want to say. So yes, we will move on to Fearless, which features Ikka. Okay, I'm really excited to listen to this song because काश इसका भी कोई वीडियो होता. There's no video for Fearless. या है, मैंने देखा नहीं है. Fearless नहीं है. So let's listen to this song. ये तो काफी like 2.5 मिनट का गाना है सिर्फ. But this is the official audio I'm gonna be listening to. Okay. Explicit content लिखा हुआ है. कोई डर नहीं. हम कभी डरे नहीं, ना ही खौफ कुछ. लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ. सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें. बड़ी है सोच, बड़ी अप्रोच, बड़ी है बातचीत. ये कैसे बंदे जो बस वर्बली करते मार पीट. ये घर में छुप के घर वाली बन के घर से करते 4 ट्वीट. पढ़ेंगे 4 ठीक तो गिरेंगे 8 फीट. या जीने एक से देख अपनी कहानी लगे. We have a bond जिसे टूटने को जमाने लगे. जिस दिन कोई ज्यादा उछले या साला हरामी बने, ऐसा ना हो इक्का कर्मा को काला पानी लगे. मैं अपने शहर में घूमूं अकेला, नीड नो बॉडीगार्ड. तेरे शहर में घूमूं अकेला पर दूं बॉडीगार्ड. वक्त पे तू सॉरी मांग, वरना तू और तेरी दिक्कत है सर के गौरी खान. बना दूंगा जोड़ी हाँ, अभी तो स्टार्ट है मेरा कहाँ से मेरिट भाई. तू जैसे बचपन की खरोंच, योर फेवरेट भाई. जितने भी सपने देखे थे धीरे धीरे कर रहा हूँ पीछा, तभी सारी चीजें कर रहा सेड इट भाई. हम कभी डरे नहीं, ना ही खौफ कुछ. लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ. सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें. सड़ते नहीं किसी भाई की तरक्की से, धूल सी चट्टा देते हैं रात की कबड्डी में. अप्रेज द लॉर्ड, अब्रेक द लॉ. रूल बदल दूं मैं बैठा जैसे मिर्जापुर की गद्दी पे. वो कहते थे मैं हिप हॉप नहीं मैन, आई डोंट केयर. माज़अपील से पहली एल्बम नाचने किया गाना शेयर. स्टैंप लगा लेजेंड का, तू खाली रीस कर. सबकी छाती पे चाटे फीलिंग लाइक रिक फ्लेयर. मैं हूँ शाहरुख तभी मुझे कोई डर नहीं. पैशन के लिए जी बेटा, उसके लिए मर नहीं. विविड मेरा विजन बेटा, तेरी तरह ब्लर नहीं. अकड़ जाएगा हमसे तू अकड़ नहीं. करूं जैसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, हेटरों के लिए रखी चलने के लिए एक्स्ट्रा सीट. हिप हॉप के समूह में भाई तेरा अल्फा ब्रीड. लेजेंड्स नेवर डाई, मुझ जैसे लाइक असैसिन्स क्रीड. हम कभी डरे नहीं, ना ही खौफ कुछ. लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ. सड़े गई I like the beat changes. ये साले हंस के दीप कलसी के संगीत. हम कभी डरे नहीं, ना ही खौफ कुछ. लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ. सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें. देहरादून का मेरा खून. देहरादून का मेरा खून. Nice. Wow, let's look at the lyrics. So I like कि जब दीप कलसी अपना प्रोडक्शन करता है तो there is this tagline, वो बार बार आता है बीच में. Let's look at the lyrics. इसके भी lyrics open करते हैं. Fearless. Oh, this was a nice song. I like this song. Fearless lyrics. आ जाओ. सबसे पहला genius lyrics. Okay. हम कभी डरे नहीं, ना ही खौफ कुछ. लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ. Pretty direct.
सड़े कई मतलब बहुत लोग सड़े होंगे बिकॉज वी आर फियरलेस. हाँ, पर है मौन चुप मतलब वो लोग चुप है बिकॉज दे डोंट हैव दिस बॉल्स टू टॉक. हाँ, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें है चुप. प्रोबली सामने से हंस हंस के मिलते बट दे कांट टॉक शिट. ओके देन कर्मा's वर्स फर्स्ट. लेट्स सी. बड़ी है सोच, बड़ी अप्रोच. ओके, बड़ी है बातचीत. ये कैसे बंदे जो वर्बली करे मारपीट, गाली गलौज टाइप्स. हाँ, ये घर में चुप घरवाली बन के घर से करते 4 ट्वीट. अगेन टॉकिंग अबाउट यू नो एनोनिमस होके तो बहुत हवा में उड़ते हैं. हाँ, पढ़ेंगे 4. हाँ, मतलब 4 ठान ठान लाफे. हाँ, पढ़ेंगे 4 ठीक तो गिरेंगे 8 फीट. ओके. देन वी हैव अ बॉन्ड जिसे टूटने का जमाना लगे. राइट, ब्ला ब्ला ब्ला. जिस दिन कोई ज्यादा उछले ये साला हरामी बने. यस, ऐसा ना हो इक्का कर्मा को काला पानी लगे. वो लाइक द वर्ड प्ले हियर. वाओ, लुक एट दिस लाइन. मैं अपने शहर में घूमूं अकेला, नो बॉडीगार्ड. I don't need like because even though I'm the boss, I don't have threats around me. But मैं तेरे शहर में घूमूं अकेला, पर मैं दू बॉडी गार्ड. Oh, nice. That was cool. Then Ikka's verse. सड़ते नहीं भाई किसी भाई की तरक्की से. Of course, I'm not jealous of anybody. धूल से चटा देते हैं रैप की कबड्डी में. यो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉ. रूल बदल दूं मैं बैठा जैसे मिर्जापुर के गद्दी पे. ग्रेट, वेरी प्रिटी. आई मीन जिन्होंने ऑफ कोर्स मिर्जापुर देखा है, वी नो दिस रेफरेंस ऑब्वियसली. वो कहते थे मैं हिप हॉप नहीं, मैन आई डोंट केयर. रियली, क्यों ऐसा क्यों बोलते थे इक्का को? मास अपील से पहली एल्बम नाचने तो. Is Ikka part of Kalamkar or is he part of Mass Appeal? Let me just check. Check करने में क्या जाता है? Ikka Singh. Is he signed with Kalamkar or is he signed? No, he's signed with Mass Appeal. Okay, it's just featuring in this. Okay. Labels T Series, Mass Appeal India Current. Okay, so he's signed with Mass Appeal. So he and Divine are in under the same label, not level. They are under the same label, he and Divine. Okay, cool. Then, oh my god, hello guys. अब जिन्होंने मेरे को बार बार रिक्वेस्ट किया इक्का के गाने पे, इक्का के एल्बम पे रिएक्ट करो, वो तो ब्लॉक हो जाएगा. मास अपील विल ब्लॉक माय वीडियो, जैसे डिवाइन का पुण्य पाप ब्लॉक कर दिया था. So okay guys, I'm not gonna react to his full album. Maybe एक दो गाने पे मैं react करूंगी धीरे धीरे, but I will not because I'm 100% sure that video will get blocked if I react to full album of Ikka. I है ना उसके album का नाम. I didn't know he was from Mass Appeal. It will get blocked, guys. I can't. Please, अब मुझे comments में convince मत करना. वो मैंने अब दिमाग में डिसाइड कर लिया बिकॉज जब पुण्य पाप ब्लॉक हुआ था आई वॉज सो सैड. आई मीन रियली, वो भी दिवाली के टाइम हुआ था और मेरा दिमाग खराब हो गया था. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग व्हेन देयर इज अ कॉपीराइट क्लेम. कॉपीराइट क्लेम तो आता ही है, हर 99% गानों पे आता है, विच इज फाइन. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो कर रही हूँ रिएक्ट बिकॉज मुझे गाने सुनने एंड आई लाइक रिएक्टिंग टू डिफरेंट म्यूजिक. बट व्हेन इट गेट्स ब्लॉक्ड, it's frustrating guys, so please, yeah. Okay, मैं हूँ शाहरुख तभी मुझे कोई डर नहीं. डर मूवी का रेफरेंस. ग्रेट. विविड मेरा विजन, ब्ला ब्ला ब्ला. अकड़ जाएगा हमसे तू अकड़ नहीं. फ्लाई करूँ जैसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी. यस. हेटरों के लिए रखी चलने के लिए accessor sheets. I don't know what that is. What are accessor sheets?
Legends Never Die, वो जैसे like Assassin's Creed. So these are games. हाँ, Legends Never Die and Assassin's Creed. So yes, so they are talking about, they're talking about them being fearless in this rap game, which is great. I think, this is how you are. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है इस एल्बम में is that even though like Karma is sort of, addressing the hate also, and he's talking about his hustle also, but there is a sense of humbleness still. I don't know what is it about this guy. I mean, I think ये इसकी personality में ही है. I just feel ये इसकी personality में ही है. That that तड़का of humbleness, because he has come up from that background. He knows the value of this struggle, because उसने clearly बोला भी कि मैं भूला नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ. I still know who I am. I'm very, very and the clarity of thought once again. So yes, this was a way better song than Price Tag, I would say. Very nice song. Very nice song. I liked Ikka's voice also, and now I'm literally like, okay, he's from Mass Appeal, तो अब तो उसका album मैं full album पे नहीं react करूँगी. तो चलो इसी में पता चल गया what to do. Anyway, so we will move on to the next track, which is No Snakes, which is going to be the second last track reaction for this video, and then Gangster के बाद फिर part 2 में मैं बाकी सारे गाने ये करूँगी. So yes, so No Snakes, which features Deep Kalsi, and I'm guessing कि Deep Kalsi ने इसमें music दिया होगा, explicit lyrics and all of that. Okay, cool. Let's react to this song. Let's see, 3 मिनट का गाना है. Listen, Fate is still number one. Like, that song was awesome. I mean, seriously. Okay, let's listen to No Snakes. दीप कलसी के संगीत पे. दीप कलसी के संगीत पे. I like this line. हर एक दीप कलसी के प्रोडक्शन में आता है ये गाना. I mean, ये line. जिथे नारे को थाली विच खाया उथे साथ कदे छड्डी दानी. पंजाबी? जिन्ना लत्ता ने वे तुरना सिखाया उन्ना लत्ता नु वे वड्डी दानी. अब ये तो मुझे समझ नहीं आएगा. थाली विच खाया उथे साथ कदे छड्डी दानी. जिन्ना लत्ता ने वे तुरना सिखाया उन्ना लत्ता नु वे वड्डी दानी. ये लाइन मुझे नहीं समझ आ रही. यार जो वे पीछे बैठते खाना खाते उनके घर में जाके नीचे बैठ के, मेरे अपनों को मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी कि मैं बदल गया पैसे की चीटें देख के, वक्त देख के जो बदले ऐसा इंसान कैसा यार. कमाना चुनौती कमाना आसान, पैसा मुझे भी आने लगे जाने कहां से फोन. धोखा दे दे अपनों को मुंह खोल हमसे मांग पैसा. नमक हरामी मेरे खून में ही फोन. धोखा दे दे ना चुनौती कमाना आसान, पैसा मुझे भी आने लगे जाने कहां से फोन. धोखा दे दे अपनों को मुंह खोल हमसे मांग पैसा. नमक हरामी मेरे खून में ही नहीं जेब का साइज देख के करते हम भाव भेद. फर्क बताना मुश्किल किसकी नीयत कैसी, पर जिस थाली में खाया उसमें मत करके जाओ छेद. इमेजिन किसी पे तुम भरोसा दिखाओ और वो धोखा दे दे, वैसे भी धोखे का कब तक खाओगे. सीधी सी बात अपने जहन में पहुंचाना, दिस इज KAR में जैसा बोगे पाओगे. जिथे नारे को थाली विच खाया उथे साथ कदे छड्डी दानी. Nice hook, Punjabi hook. जिन्ना लत्ता ने वे Though I don't understand. उन्ना लत्ता नु वे वड्डी दानी. जिथे नारे को थाली विच खाया उथे साथ कदे छड्डी दानी. जिस थाली पे खाया उसने वैसे कुछ बोल रहा है. उन्ना लत्ता नु वे वड्डी दानी. अखां बंद नहीं करी दी कदे माड़ा देख के, दूजे दी लगी ते नहीं ओ हथ सेक दे. किसे दे जख्म उत्ते मेरे चैनल ये सब आप ही अकाउंट जो करम लिख दे. कितने फोन कितनी गाड़ी कितना पैसा तेरे पास, जेब में रख हिसाब, मुझे क्या करना इस बात का. वेटर और वॉचमैन से बात कैसे करता है, इस बात से अंदाजा होता तेरी औकात का है. कुछ लोग जिन्हें खाना नहीं आता रास, कुछ लोग जिन्हें मेरी तरक्की से लगती आग. कुछ लोग जो कहते थे कि वो भाई है साले, पर टाइम आने पे दिखाया रंग साले बने साफ. तो जो भी दूर है रहो दूर, तुम दूर सही. भाई माना था तुम्हें खैर निकला कसूर यही, तूने सोचा फायदा मौका मिला यू प्लेड मी, पर दोस्ती के नाम पीठ पे किले मंजूर नहीं. बेसबर सा आदमी पूरे मन से तन के पीछे भागे किसी और के, मैं इस कदर का आदमी जो पूरे मन से खौफ में कि कोई रिश्ता न तोड़ दे. जिथे नारे को थाली विच खाया उथे साथ कदे छड्डी दानी. जिन्ना लत्ता ने वे तुरना सिखाया उन्ना लत्ता नु वे वड्डी दानी. जिथे नारे को थाली विच खाया उथे साथ कदे छड्डी दानी. जिन्ना लत्ता ने
what a great song with great lyrics. Really, that was great. That was amazing. I absolutely want to just immediately open up the lyrics. I'm guessing वो पंजाबी lyrics में दीप वही बोल रहा था. The same thing what Karma also said. Oh, एक minute, no snakes. Genius lyrics आ जाओ मेरी मदद करने. वो ये ना जिथे नाल एको थाली विच खाया ओधा साथ कड़े छड्डी छेदी दानी. That's what ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया. These talking to the snakes. Huh? Let me know. Punjabi people in the comment section, please help me out here. So यहाँ पे इस गाने में you can actually understand the disappointment, and you sort of also understand that there were people who had probably told Karma कि यार हटो ना वहाँ से. ये गाना पता नहीं क्यों कि for some reason this song reminded me of Black Sheep, Raftar's Black Sheep, because there also he talks about people whom he trusted and जिन्होंने उसको धोखा दिया. Exactly, that is the theme of this song also. That is the theme of this song also. Let's just quickly go through the lyrics. साथ आज भी यार जो पीछे, साथ आज भी यार जो थे पीछे बैठे. Yes. खाना खाते उनके घर में जाके नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के खाना खाना. मुझे तो वही सबसे अच्छा लगता है. टेबल से ज़्यादा आई थिंक ज़मीन पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है. मेरे अपनों को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं बदल गया पैसा देख के, कि मेरी फितरत बदल गई या मेरे चाल चलन बदल गई अगर पैसा आ गया. तो ऐसा नहीं हुआ. तो मेरे अपनों को मेरे से वो शिकायत कभी नहीं हुई है. वक्त देख के जो बदले ऐसा इंसान ही क्या. हाँ, कैसा इंसान है वो. हाँ, यार कमाना चुनौती, कमाना आसान, पैसा. करेक्ट. मुझे भी आने लगे भाई कहाँ से फ़ोन. धोखा दे दो अपनों को, मुंह खोल हमसे पैसा मांग. पैसा मतलब जितना तुम बोलोगे हम उतना देने के लिए तैयार है. जस्ट लीव देम. उनके अगेंस्ट हो जाओ बेसिकली. हमारी टीम में आ जाओ. करेक्ट. नमक हरामी पर मेरे खून में नहीं है. यस, वही है ना कि जिस थाली में खाया वैसे नहीं है कि हम उसी में छेद कर दें. गुड. then जिस थाली में खाया. करेक्ट. एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि इमेजिन किसी पे तुम भरोसा दिखाओ और वो धोखा दे दे. हाँ, वैसे भी धोखे का कब तक खाओगे तुम. हाँ, बिकॉज वो बोलता है ना कि karma bites you back. I think it's so suited on his theme because what goes around comes around. You will reap what you sow. So it is all of that. And मैं भी इस चीज़ पे totally believe करती हूँ कि आप वो जो हम फिर से वही चीज़ बोलते हैं ना कि अगर आप एक को उंगली दिखा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ है. So think before you talk. बिकॉज अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ और आपके अपनों के साथ ही बुरा होगा. आई कंप्लीटली बिलीव इन दैट. सो यस, आई कुड टोटली रेजोनेट कि वैसे भी धोखे का कब तक खाओगे. देन ब्रिज आ गया. फिर सेकंड वर्स. तेरे पास जेब में रख हिस्सा, मुझे क्या करना है इस बात का. वाटर ये दिस वन, लिसन, दिस लाइन वाज ऑसम. वाटर और वॉचमैन से बात कैसे करता, इस बात से अंदाज होता तेरी औकात का. यस, आई टोटली अग्री. आई एब्सोल्युटली अग्री. क्योंकि हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोग शायद एक्सेप्ट ना करें, बट आई फील दिट इज अ बिग प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिज्म कि एक सेक्ट ऑफ पीपल नीचा दिखाते हैं कि अगर कोई जॉब होती है ना, जो वॉचमैन की जॉब कर रहा हो, या फिर आपके घर में आपकी अगर कोई हाउस हेल्प है, या आपने अपनी गाड़ी के लिए किसी ड्राइवर को अपॉइंट किया है. सो वी सी दीज जॉब्स, और ये फैक्ट है. ठीक है, हो सकता है कि आप में से ऐसे बहुत लोग नहीं हैं, बट ऐसे बहुत लोग भी हैं इस दुनिया में जो इन सब जॉब्स को देखते हैं
और बोलते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करते, ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हमारे लेवल से द क्लासिज्म ऑफ द अपर क्लास, नॉट कास्टिज्म, टॉकिंग अबाउट क्लासिज्म, ठीक है, कि ये हम ये सब काम नहीं करते, है ना, बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव, बिकॉज बिफोर आई स्टार्टेड माई चैनल एंड ऑल, आई वॉज इन रिटेल, लाइक मैं जब कॉर्पोरेट में काम करती थी, आई वॉज इन रिटेल, नॉट ऑनलाइन रिटेल, ऑफलाइन रिटेल विद अ लग्जरी ब्रांड, एंड मैं फ्रंट एंड ऑपरेशंस देखती थी, जहाँ पे आई यूज टू विजिट स्टोर्स एंड स्टाफ के साथ मैं भी फ्लोर पे रहती थी, इवन दो आई हैड माई सेल्स स्टाफ, आई वॉज ऑलवेज ऑन द फ्लोर, even though I was their manager, and I mean I still go to my stores, I still call them my stores, मतलब मेरा इतना attachment है मेरे पुराने स्टाफ के साथ कि I still call से कि हाँ मैं अपने स्टोर में जा रही हूँ, अपने स्टाफ से बात करने जा रही हूँ, so and I have immense respect फॉर द सेल्स टीम। तो जब मैं रिटेल में हूँ ना, और जब मैं कभी देखती हूँ कि कस्टमर्स स्टोर वालों से कभी कभी कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो ये भूल जाते हैं कि भाई आप जस्ट बिकॉज वो स्टोर में सेल्समैन है, आप इतनी बुरी तरह से बात करें, बिकॉज आई हैव फेस्ड द ब्रंट ऑफ इट, वेयर I have seen customers disrespect the sales staff, and it just used to break my heart. So जब वो लाइन आई ना, I immediately, जैसे ही वो लाइन आई, मैंने बोला ना yes exactly. So in a way I can relate, because yeah, I mean for us maybe we see that ये जॉब छोटा मोटा है, but it's not. Wow, yeah, that line really hit me. That line seriously really hit me. Okay. कुछ लोग जिन्हें मेरी तरक्की से लगती आग, ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ कुछ लोग कहते थे कि वो भाई है, हाँ, बट टाइम आने पे सबने अपना रंग दिखा दिया, pretty direct, like they've all turned into snakes. जो भी दूर है, रहो दूर, तुम दूर ही रहो, दूर ही सही हो, तुम दूर, मेरे को नहीं चाहिए, ग्रेट, अच्छी बात है कर्मा, भाई माना था तुम्हें, खैर निकला कसूर यही, ये एग्जैक्टली ये लाइन जब मैंने सुना तो मुझे एग्जैक्टली ब्लैक शीप की याद आ गई कि यही मेरा कसूर था कि मैंने तुम्हें अपना माना था, सॉर्ट ऑफ गुड, देखो मैं भी थोड़ा वो एक्सप्रेस किया है, दैट डिसअपॉइंटमेंट कि so yeah, that was then the hook comes in, and that was the song, great song, I really like the song, but still I think fate takes the cake till now, but ठीक है, अभी इस वीडियो का एंडिंग सॉन्ग सुनते हैं for this part 1, which features King Gangster, and इसका वीडियो है, ये अगस्त में आया था इस साल, okay, wow, I'm really excited, I think ये गाना सुनने के लिए I'm so excited because अभी King पे ही react किया, तो that's why, okay. ओह, दीप कलसी के संगीत पे, यस, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, लिसन, ये वो थोड़ा कमर्शियल वाला ट्रैक है क्या? आई डोंट माइंड, ऐसा ट्रैक अभी तक आया नहीं है, सो अगर ऐसा है तो आई डोंट माइंड। मेरे शहर में चीजें फेमस एक दो, राघव का स्लो, कर्मा का फ्लो, तीसरी तू होगी गर इजाजत हो, जस्ट गो विद द फ्लो बेबी, लेट्स गो। मैच में वीक थे, अब नंबर ही नंबर है, जो तेरे साथ हैं वो बंदे ही अनपढ़ हैं, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट अ लेडी, माय लेडी, हम जो भी हैं अपने ही दम पर हैं, जो कोई छेड़ दे तुझे बने थोड़ा भी बदमाश, कोई नहीं बचेगा जो दी थोड़ी सी आवाज, मैंने पार्टी में बंदे तोड़े हैं गिलास, मेरे साथ में ही बैठे थे जो खड़े हैं खिलाफ, बोले मुझ पे तू गाने नहीं बनाता, मेरी जाना मुझे गाना नहीं आता, करता हूँ रैप, लिखता हूँ फैक्ट्स, कभी झूठी मैं कहानी नहीं बनाता, बोले मुझ पे तू गाने नहीं बनाता, मेरी जाना मुझे गाना नहीं आता, एंट्री बार में हम 7 यार 4 थे, फिर चेहरा देखा गार्ड ने भी स्ट्रेट इन, आई फेल्ट लाइक गैंगस्टर, she calling me gangster, gangster, we live like gangster, she calling me gangster, we live like Yo, King!
baby bomb, baby bomb, baby bomb. She drop it like a shot, पूछो पहले मारा कौन. तेरा काटा मैंने सुना, पानी भी नहीं पीता, तू भी पानी में नहीं पीती. नीटे खींचे लेडी डॉन, तेरे चर्चे ही चारों जगह हो रे. तो हमने भी कांड न किए हैं जाना थोड़े. जहाँ रखा पैर वहाँ कर दिया राज. अच्छे अच्छे बंदों के भी खोल दिए घोड़े. ओ हम न सुने. King looks I like the great. way you put it down on me. मैं गिनता नहीं पैसा, money counting on me. तू बस दे पता, मैं कर दूं तबाह. कौन रोकेगा जो if I got your eyes on me. जब से आए राजा नोट उड़ाए, कहते शैंपेन बहा दो. थोड़े थोड़े गए जल, काफी हुए हाय, कहते नोट इनके नाम के छपा दो. मेरे प्रा प्रा जैगर खोलो, दो दो पैग मारो, सारे गम भूलो. हर कोई बदमाश जब तक आता नहीं खास. सारे जानते हैं you know what we live like. Gangsta, gangsta, she calling me gangsta. I did not expect this vibe at all. Gangsta, we live like gangsta, gangsta, gangsta. She calling me gangsta, gangsta, gangsta. We live like gangsta, gangsta, gangsta. She calling me gangsta. I am telling you, this was the last thing I expected gangster to sound like. First, I was like, अच्छा commercial थोड़ा feel लग रहा है because जैसे वो visuals वैसा है. And then I was like, अरे ये तो पूरा ही एकदम वो अलग ही मतलब because this album was following a certain tone. ICU से अब तक it was following a certain set pattern जहाँ पे वो अपने हसल की बात कर रहा है, धोखाधड़ी की बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है. And then suddenly, wow, what a great ending to this video, to this part 1. Oh wow, I absolutely did all. But अच्छा है, एक आध कमर्शियल गाने भी होने चाहिए एल्बम में, because when an album gives you that variety of song, I love it. I honestly, I enjoyed this. I enjoyed it. Even though मैं ऐसे टाइप के गाने बहुत कम ही सुनती हूँ, like a little bit more commercial hip hop, not much. There are songs that I really love in this space. जैसे रफ्तार के from Mr. Nair, I have added couple of songs like, you know, to my playlist, and those are like all the commercial tracks. Those are all the commercial tracks that I've added. I really fell in love with them. So it's not like I don't like these kind of songs. It takes a certain amount of time to grow on me. ये गाना भी even though thoroughly enjoyable because इसका वीडियो है. आई एम अ लिटिल अनश्योर कि अगर मैं ये सिर्फ गाना ऑडियो में सुनती तो शायद थोड़ा मुझे पहले मिक्स फीलिंग्स आता. वो तो अभी मैंने वीडियो के साथ देखा तो द इम्पैक्ट इज ऑलवेज, बिकॉज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज हैज अ मोर you know, more positive or a more negative impact. I would say more positive impact because, you know, just seeing Karma and King in the same frame, they both look absolutely amazing. And Karma, you know, flexing with that lady over there, I was like, dude, ये अवतार तो मैंने देखा नहीं तुम्हारा, पहली बार देख रही हूँ. King का तो था, King के एल्बम में I could see that, but so for King I was like, हाँ चलो, he's doing all those swaggy things, so I can totally understand. But looking at Karma with that lady and dancing around, he looked cute. I would say he still looked so adorable and cute and innocent. Honestly, I am not kidding. So let's go back thoda sa. Deep Kalsi ke sangeet pe, I think, wow, what a great, the beats are really good, huh? Look at I know Karma is trying to be stylish and all of that, and he is stylish, but I find it so adorable for some reason. I don't know why. It's his baby face. Guys, it's his cute baby face. Please. तेरा दून का मेरा खून. मेरे शहर में चीजें फेमस एक दो, राघव का स्लो फ्लो, बेबी का. The Raghav is from Dehradun? Really? Because he's so good at that slow-mo dancing, na? So Raghav ka slow, Karma ka flow. So I did not know Raghav is from Dehradun. Probably. फ्लो तीसरी तू होगी गर इजाजत हो. I was like, okay, yes, why not? Maths mein weak, but ab number, you know, number hai. Yes, he's earning the moolahs.
नंबर है जो तेरे साथ हैं वो बंदे ही अनपढ़ हैं they don't know how to treat a lady Yes. थोड़ा भी बदमाश कोई नहीं बचेगा जो दी थोड़ी सी आवाज मैंने पार्टी में बंदे तोड़े तोड़े हैं गिलास मेरे साथ में ही बैठे थे जो खड़े हैं मेरी जान मुझे गाने करता हूँ, रैप लिखता हूँ, फैक्ट्स कभी झूठी मैं कहानी नहीं बनाता. यस, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. नहीं आता एंट्री बार में हम 7 यार 4 थे फिर चेहरा देखा गार्ड ने वी स्ट्रेट इन We straight in, you know, मतलब हमको दे दी उसने डायरेक्टली एंट्री मेरा चेहरा देख के. So I felt like a gangster. Yo! Gangster, gangster, she calling me gangster, gangster, gangster. We live like She's so pretty. This lady, she's damn beautiful, man. gangster, gangster, gangster. We live like See, when King comes in, I was like, whoa! And that red suit is just suiting him so much. He looks fabulous. He looks that red and black combination looks so good, so good. कौन तेरा काटा मैंने सुना पानी भी नहीं पीता तू भी पानी में नहीं पीती नीटे खींचे लेडी डॉन तेरे I'm sorry. I know the lines are supposed to be very cool and swaggy, but it's just, I don't know, for some reason it makes me laugh. I don't know. I think I was not expecting this vibe. That's why I feel so, you know, happy and I'm laughing. I'm laughing in a good way. I'm not laughing at the song. It's just expressing my happiness. So yes, so pretty much that's the song. Zyada kuch lyrics are also like pretty chill. It's the vibe. This is like a vibey song. We live like gangster, gangster. She calling me gangster. Yeah, I know. Anyway, so let me just stop this over here. That was some song, huh? Really. Oh, that made me so happy because I totally was not expecting it. Okay. So, that was the part 1 of Made You Proud by Karma. हाँ, क्या नाम था Karma का full name? I totally forgot. Vivek Arora. So that was Vivek's Karma's album. I like his stage name Karma. It says a lot about him also. But out of all the songs, let me just open up the track list. In this video, number 1 is Fate. That is, I am definitely adding it to my playlist. चाहे जो हो जाए, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं. So Fate is my top number 1 song. Second is Beat Do. Even though I feel there are a lot of killer bars in that song, which I did not understand. I hope you guys help me out there. But overall, the entire feel of the song, the way it sounded, I loved it. So Beat Do definitely comes in second in my list. The third one, I don't know. Something, I think it's somewhere between ICU and No Snakes. I like that Punjabi hook. Okay, I'll probably, third for me is No Snakes because I love the lyrics and that Punjabi hook was a really nice addition. So it made the song sound also really nice. So third for me is No Snakes. Fourth is ICU. I Challenge You. Love the intro track. Very beautifully done. Fifth is going to be Gangster. First, I was thinking maybe Fearless, but I will put Gangster in fifth just because it's a very, like the entire vibe was so different from the entire track, from whatever I have listened to, because like I said, it was the entire album was following a theme and suddenly Gangster came in. So I definitely will put Gangster next, then Fearless, and then at the end, Price Tag. Price Tag is a song which I'll probably not play on repeat mode, and it's a skippable song for me, even though the lyrics are nice, but overall the song overall did not impress me that much. So yes, that was my preferential ranking for this part of the album, and because Zaruri Nahi is a song which I love. It's added on my playlist. So in the end, overall, I feel the ranking probably would change. I want to know your top 3, at least top 3, if not top 5 from the entire thing. I would love to know that in the comments below. And yes, I will end part 1 here. I hope you enjoyed the reaction so far, and I will see you soon now on my next video. Bye guys!